Hello, guys, and welcome to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. So, guys, I know that the video is coming after a very long time, and to give you a freshen up of what we are going to cover up in today's video, I would like to, you know, go back in the previous video and let you know that in the previous one, we understood about what AI agents are and what are the key factors of AI agent, which was also known as the peace property, wherein we understood that the P stands for performance, E stands for environment, A stands for actuators, and S stands for sensors. Similarly, today we are coming up with a topic that is types of environment. So in the previous video we understood, right, that an agent is something that could perceive the world, perceive the environment around it through sensors and act upon and make a decision through actuators. So now what an environment is? Environment is basically nothing but where an agent lives, where an agent operates, and where the agent acts upon and work towards its goal. That is in what we call as environment. So everything that surrounds the agent is known as environment. It's not the part of the agent. This is something that you should clear in your mind, that environment is not a part of an agent. It is a supporting factor to the agent, right? It's where the agent is being located. So I would be starting, with the types of environment, because before moving further to types of agents, it's good that we understand various types of environment first. Now, there are 8 different types of environments. We would be covering each of them in very detailed in today's video. So, without any further ado, let's get into it. Now, if I talk about the types of environment, so there are fully and partially observable environment, deterministic and stochastic environment, episodic and sequential, single and multi-agent, static and dynamic, discrete and continuous, known and unknown, accessible and inaccessible. So, coming up with the first one, which is fully and partially observable. So, it's simple. If an agent can sense and or access the complete state of an environment at each point of time, then we say that it's a fully observable environment. Else, it is an partially observable environment. Now, what do I mean over here is, like, if I say कि एक एजेंट है राइट, उसको वो हर एक स्टेप को, वो अपने हर एक एक्शन को समझ पा रहा है जो वो इन्वायरमेंट में ले रहा है, राइट? तो जो करंटली उसका जो एक्शन होगा, अगर वो उसको समझ पा रहा है, उसको पता चल रहा है व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट द गोल इज, तो उसको हम एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहते हैं, कि जो एजेंट है वो कैपेबल है कि वो फुल्ली अंडरस्टैंड कर सके अपनी इन्वायरमेंट को। बट अगर ये नहीं होता है तो वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब कि वो समझ रहा है बट नॉट कंप्लीटली। उसके कुछ एक्शंस गोल की तरफ हो सकते हैं, कुछ एक्शंस नहीं हो सकते। तो जो एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है वो इजी होता है, क्यों? क्योंकि उधर कोई भी एक इंटरनल हमें स्टेट नहीं रखना होता जो ये ट्रैक करे कि हिस्ट्री क्या थी। इधर हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोड एजेंट पे कम पड़ता है, राइट? और अगर एक ऐसा एजेंट है जिसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं है, दैट मीन्स वो अपनी एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी परसीव नहीं कर पा रहा, वो अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो उसको हम एक अनऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट? अब अगर मेरे को आपको एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल, एक पार्शली ऑब्जर्वेबल का एग्जांपल देती हूँ। सो फॉर अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल आई वुड से एक चेस गेम, जहाँ पे जो एआई एजेंट है उसको पता है कि क्या इंटायर बोर्ड है, उसके पास सारे पीसेस हैं, और ऑल द पॉसिबल मूव्स आर नोन टू द एजेंट। पार्शली ऑब्जर्वेबल में लेट्स टेक अ पोकर गेम, ठीक है? यहाँ पे जो एजेंट है कैन नॉट सी द ओपोनेंट्स कार्ड, उसको सामने वाले का कार्ड नहीं पता है, तो दैट इज पार्शली ऑब्जर्वेबल। नाउ वी कम टू डेटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक। नाउ अगर एक एजेंट का करंट स्टेट और उसका जो सिलेक्टेड एक्शन है कंप्लीटली डिटरमाइन कर रहा है उसका नेक्स्ट स्टेट को या उसके नेक्स्ट एक्शन को,
तो हम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं डेटरमाइंड एनवायरनमेंट। अगर एजेंट को पता है कि जो वो अभी कर रहा है और उसका जो एक्शन है वो टुवर्ड्स उसके गोल है और वो उसको अचीव कर पाएगा, तो उसको हम कहते हैं डेटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। बट जो स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट्स होते हैं वो एक रैंडम होते हैं नेचर में, और ये डेटरमाइन नहीं करते एजेंट को। एजेंट को नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा, ये एकदम नेचुरल होते हैं। देयर इज नथिंग और नो हिंट दैट इज बीन प्रोवाइडेड टू द एजेंट। जो डेटर्मिनिस्टिक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो एजेंट है बिकॉज उसको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एनवायरनमेंट का, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी एनवायरनमेंट की, और वो अपने एक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा है, तो इसके अंदर एजेंट को कोई भी अनसर्टनिटी के बारे में डरने की जरूरत नहीं होती। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डेटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्विंग अ सुडोकू पजल। यहाँ पे जो एजेंट का एक्शन है, ठीक है, लीड करता है एक सिंगल और प्रिडिक्टेबल न्यू स्टेट पे। मतलब कि जो भी वो बंदा करेगा, जो भी एक एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा, वो लीड करेगा एक नई स्टेट में, एक नए आंसर में, जो उसको फाइनल गोल की तरफ लेकर जाएगा। वेयर एज अगर मैं स्टोकेस्टिक का एग्जाम्पल लूँ, तो ऑटोनॉमस ड्राइविंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो ट्रैफिक है, वेदर है और बाकी ड्राइवर्स हैं, वो उनके एक्शंस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है और वो रैंडम हो सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल। इफ आई टॉक अबाउट एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल, तो एक एपिसोडिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ वन शॉट एक्शन होता है एंड ओनली द करंट पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एक्शन। मतलब कि हमारे पास एक छोटा सा ये कह सकते हो आप हिंट होता है और व्हाट वाज एक्चुअली डन इन द प्रीवियस वन, और साथ में जो हमारा करंट एक्शन होता है वो होता है। बट एक सिक्वेंशियल में इट्स जस्ट लाइक we are watching a series or something, so we have a sequence which is going on. तो सिक्वेंशियल में जो एजेंट्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कि वो पास्ट एक्शंस को मेमोराइज करे, और वो जो उनके पास्ट एक्शंस हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो अपना नेक्स्ट बेस्ट एक्शन ले सके। राइट, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो एपिसोडिक में लेट्स टॉक अबाउट स्पैम ईमेल क्लासिफायर। तो हर एक ईमेल को है क्लासिफाई करा जाता है इंडिपेंडेंटली। क्लासिफाई करना एक ईमेल को एज स्पैम डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट। मतलब कि अगर मेरी एक ईमेल स्पैम है तो दूसरी मेरी स्कैम होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है। राइट, तो एपिसोडिक यही कहता है कि एक एक पर्टिकुलर एक्शन का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे एक्शन पे नहीं जाता, या आपके फॉलोइंग एक्शन पे नहीं जाता। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट सिक्वेंशियल, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। जो कार की करंट पोजीशन है, राइट, उसको अचीव करा गया है बाय द प्रीवियस एक्शंस, जो डिटरमाइन करते हैं उसकी पॉसिबल फ्यूचर पाथ्स को। तो यहाँ पर अगर कार अभी स्ट्रेट लाइन में चल रही है या फिर लेफ्ट ले रही है, राइट ले रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका कुछ जो प्रीवियस एक्शन है, जो उसके अभी करंट एक्शन है और प्रीवियस हिस्ट्री है, वो उसका इन्फ्लुएंस करेगा नेक्स्ट पॉसिबल फ्यूचर आउटपुट पे। राइट, फिर आता है सिंगल एंड मल्टीपल एजेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट सिंगल एंड मल्टीपल एजेंट्स, इफ ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्व इन एन एनवायरमेंट और ऑपरेट कर रहा है खुद से, देन सच एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल एजेंट एनवायरमेंट। वेयर एज अगर मल्टीपल एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं एक एनवायरमेंट के अंदर, तो उसको हम लोग मल्टी एजेंट एनवायरमेंट कहते हैं। एंड ऑल्सो टू कीप इन माइंड, जो हम डिजाइन प्रॉब्लम्स एक सिंगल एजेंट एनवायरमेंट में देखेंगे वो डिफरेंट होगी फ्रॉम अ मल्टी एजेंट एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि सिंगल एजेंट जो इन्वायरमेंट है वो हम तभी यूज करेंगे जिस इन्वायरमेंट में हमारे पास सिर्फ एक एजेंट होगा। बट मल्टीपल एजेंट इन्वायरमेंट में मल्टीपल एजेंट्स होंगे जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे होंगे। नाउ टू गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर मैं सिंगल एजेंट की बात करूं, तो एआई प्ले कर रहा है कोई सिंपल या मैं बोल सकती हूँ कुछ सिंपल एआई वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, तो वो अगर एक सिंपल एम्प्टी रूम में काम कर रहा है तो उसको दिक्कत की बात नहीं, उसको पता है उसको एक पर्टिकुलर एरिया में वो खुद से काम कर लेगा क्योंकि रूम एम्प्टी है। अगर मैं बात करूं मल्टी एजेंट की, मल्टी एजेंट में आ जाता है तुम्हारा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग बोर्ड। अभी जो बोर्ड्स होते हैं इनका जो डिसीजन है
वो इन्फ्लुएंस करा जाता है बाय मल्टीपल एक्शंस, जो कि बाकी सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ट्रेडिंग कॉम्पिटिटर्स हैं या ह्यूमन ट्रेडर्स हैं, उनके एक्शंस को समझना, उनके एक्शन से इन्फ्लुएंस होके अपना डिसीजन लेना। सो हेयर वो मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेर एज सिंगल के अंदर अगर मैं एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर या वी हैव द एआई वैक्यूम क्लीनर्स राइट अभी, तो अगर मैं उनको एक क्लीन रूम में छोड़ दूं तो वो एक सिंगल एआई भी काम कर लेगा, राइट। बट अगर मेरे को कुछ स्टैटिस्टिक्स जानने, देन आई नीड मल्टीपल एजेंट्स. Now we have static and dynamic environment. If I talk about the static and the dynamic environment, अगर एक environment change कर रहा है, जब AI कोई काम कर रहा है, तो उस environment को हम dynamic कहते हैं, otherwise वो static है. जो स्टैटिक इन्वायरमेंट होता है वो इजी टू डील होता है, क्यों? क्योंकि जब एजेंट कुछ काम कर रहा है उसको कॉन्टिन्यूसली देखना नहीं है कि जो वर्ल्ड है उसके आसपास वो चेंज तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वर्ल्ड में अगर जो इन्वायरमेंट उसके आसपास है इफ दैट इज गेटिंग चेंज, तो उसका जो डिसीजन है, जो उस गोल के टूवर्ड्स एक्शन लेने का, वो भी चेंज होगा. बट अगर वो स्टैटिक है, वो टिका हुआ है और वो इन्वायरमेंट नहीं हिल रहा है, तो जो डिसीजन लेने में इजी होगा और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, राइट. नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, तो अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो मैं स्टैटिक में आपको एग्जांपल देती हूँ एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्वर का. यहाँ पे जो पजल ग्रिड है वो फिक्स रहती है, ठीक है. तो जो एआई सर्च करता है करेक्ट वर्ड के लिए, राइट, जो फिक्स चीज है उसमें उसको पता है कि ये पॉसिबल चीज है और इनमें मैं काम कर सकता हूँ. अगर मैं डायनामिक की बात करूँ तो कोई वीडियो गेम है तो यहाँ पे जो ओपोनेंट है और जो गेम की स्टेट है वो चेंज होती रहती है साइमल्टेनियसली, और जो एजेंट है वो अपने प्लान उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है. डायनामिक में यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड एक्शन प्लान, while in static you have a fixed action plan कि भाई यही होगा because things are not changing at all. Now coming to discrete and continuous. If I talk about discrete and continuous environment, तो अगर एक environment ऐसा है जिसमें finite number of percepts हैं और actions हैं जो कि हम perform कर सकते हैं, उस environment को मैं discrete कहती हूँ. Else वो continuous है. एक chess game जो है वो discrete environment के अंदर आती है, क्यों? क्योंकि वहां पे पता है कि एक finite number of moves होंगे जो कि perform करे जाएंगे. बट अगर एक सेल्फ ड्राइवन कार है तो वो एग्जाम्पल होती है कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट की, क्यों? क्योंकि कब आपका वेदर चेंज हो जाए, कब आपके सिग्नल्स चेंज हो जाए, यू नेवर नो, राइट. तो वो चलता रहता है. चेस गेम वुड कम टू एन एंड, बट अ सेल्फ ड्राइविंग कार वोंट कम टू एन एंड अंटिल हम उसको कुछ कमांड दे या अंटिल उसका ट्रिप खत्म हो, राइट. सो कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट वो जो कि चेंज होती रहती है, जो कि अपडेट होती रहती है. बट डिस्क्रीट में यू आर अवेयर दैट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ actions and percepts that an agent can make. Now we come to known and unknown. If I talk about known and unknown environment, so basically the known and unknown are actually the features, are not the features of the environment, but it's an agent state of knowledge to perform an action. अगर एक known environment है तो जो result of all the actions जो होगा वो known होगा agent को, while unknown environment में जो एजेंट है पहले उसको लर्न करना है कि कैसे वो काम करेगा और ताकि वो एक्शंस परफॉर्म कर सके, राइट. तो नोन के अंदर ऑल द एक्शंस के रिएक्शंस आर नोन, वाइल अननोन में एक्शन रिएक्शंस आर नॉट नोन. द एजेंट नीड टू लर्न एंड देन परफॉर्म द एक्शंस. तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो हमारी नोन एनवायरनमेंट है वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल हो, वाइल जो हमारी अननोन एनवायरनमेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो, राइट. बिकॉज नोन में हमें पता है, हम अपने एक्शंस को परसीव कर रहे हैं, राइट. बट अननोन में वी आर नॉट, वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो नोन का एक ए आई प्लेइंग प्री-डिफाइंड बोर्ड गेम विच रूल्स, नोन रूल्स, राइट, जैसे कि चेकर्स हो गए एंड देयर आर मेनी गेम्स, तो उसको पता है कि ये रूल्स हैं और ऐसे ऐसे काम होगा, तो रूल्स आर नोन एंड द बोर्ड गेम में पता है कि उसको, जैसे चेस बोर्ड हो गया तो ही नोज द मूव्स एज वेल. अननोन की बात करूँ तो न्यूली डेवलप्ड कोई
न्यूली डेवलप रेंज हो गई या कोई न्यूली डेवलप गेम हो गई जो कि अभी समझनी है कि ये होगी कैसे. इट्स बेसिकली लाइक हाउ द कोडर्स नाउडेज मेक अन new game which you need to understand and then play, right? Now we come to the last type of environment which is accessible and inaccessible. Now अगर एक एजेंट ऑब्टेन कर पा रहा है अपनी करंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अगर एक एजेंट करंट कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपनी करंट स्टेट की ले पा रहा है तो उसको हम एक्सेसिबल कहते हैं. अगर वो उसको नहीं एक्सेस कर पा रहा तो वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा. मतलब कि एक एम्प्टी रूम जिसकी स्टेट डिफाइन करी जा सकती है उसके टेम्परेचर से इज एक्सेसिबल, राइट? बट वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट एन इनएक्सेसिबल थिंग, तो एक रोबोट जो सर्च कर रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स अंडरग्राउंड, तो वो जो कुछ पर्टिकुलर चीज को जो हम सर्चिंग पे लगा रहे हैं दैट इज इनएक्सेसिबल. वो सर्चिंग पे लगा हुआ है. इट माइट बी फिजिकली देयर, इट माइट नॉट बी फिजिकली देयर, राइट? तो अगर एक एजेंट अपनी करंट स्टेट की इन्वायरमेंट को समझ रहा है और उसको परसीव कर पा रहा है एकदम एक्यूरेटली तो वो एक्सेसिबल इन्वायरमेंट में है. वाइल अगर वो ये सब नहीं कर पा रहा तो वो एक इनएक्सेसिबल environment में. So guys, this was about the various types of environments. I hope you understand the video, the topics were cleared. If you will have any doubts, you could drop down in the comment section. I'll truly get back to you for that. The next video would be on types of agents. Now, types of agents would be easier for you to understand if you understand the types of environments. So I hope you love the video and don't forget to subscribe, hit the bell icon and like the video. See you in the next one.